important for us, especially for the DAOs and the DAs are concerned. You're going to talk about the administrative issues relating to the DA cadre, very, very important aspect. And we have with us Srimati Aparna Shitode, Assistant Accounts Officer from the AGND2 Maharashtra. She is academically BSc Electronics, and thereafter she has joined our department and also has got a dual knowledge of civil as well as civil accounts as well as civil audit. She has cleared her civil accounts in the year 2004, and thereafter immediately in the year 2005, she cleared civil audit. That's really an achievement, Aparna. Thanks a lot for the department. You know, your achievement is a contribution to our department. Thanks. And also she was on deputation to the AG audit to Nagpur from 2005 to 2010. And as a faculty, she's got a various experience, especially in the language programs, that is Marathi language, and as well as DA cadre examinations, trainings, and workshops for senior accountants for various trainings like right to information, noting, drafting, as well as role of internal audit in office and sexual harassment in office and other administrative issues relating to the DA cadre extra. So over to you, Aparna. Please commence your sessions. You can unmute. Yours is on mute. You can unmute. Okay. Is unmuted, na? Yes, Hello. yes. Please go on. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Thank you, Jayashree madam. And thanks for inviting me to deliver lecture in this online training program for DA cadre. It's just, I think, refresher course, na? Yes, ma'am. Yeah, it is like a refresher, but more on the functional side. We have to part. Thank you very much, madam, for inviting me. So, good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Yes. I know you, every one of you very well, as every day I read your personal files, some issues, everything. But I would like to see your faces also. Please turn on your videos. So then I would able to relate you with your file afterwards, na? Okay. From the Mumbai region, you don't come at Nagpur, and so I have not seen any one of you. I think Rajesh Kumar Sinha. Where is Rajesh Kumar Sinha? Okay, let's start. We cannot see it as a training because you all are aware of the rules and regulations as you are working as DAOs and DAs in the field. Okay, so we will conduct it as a workshop. मैं कुछ कहूंगी, आप लोग कुछ कहिए. सबसे पहले देखिए, आप फील्ड पे काम करते हैं, फील्ड का आपका एक्सपीरियंस अलग है, वहां के इश्यूज अलग है. आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? जो हमको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. यस, किसी को कुछ कहना है? थोड़ा हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेरीज है रिलेटेड तो आप पूछेंगे, ठीक है? तो थोड़ा इजी जाएगा, है ना? कैलाश चंद मीना, आप ऐसे आड़े दिख रहे हो. प्लीज आपका कैमरा. गौरव कुमार, आड़े दिख रहे आप. हाँ, कैलाश चंद मीना, कैमरा सीधा कर लीजिए आप. ठीक है. हम लोग सबसे पहले जो अभी ग्रेड 2 बने हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं. अभी अभी जिनके प्रमोशन हुए, अभी पे फिक्सेशन होने का है, ठीक है ना? यहाँ पे डीओ ग्रेड 2 है, भूपेंद्र देवल है, और कौन है? मीनाक्षी. यस मैम. मैक्सिमम वही है. दर्शन रेड्डी. ओके ओके, तो आप लोग डीओ ग्रेड 2 है. ग्रेड 1 से भी कोई है ना? यस मैम. जी मैडम. बट ये राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि हमको जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है?
सबसे पहले हमारा जो रिकॉर्ड है, बेसिक रिकॉर्ड, सर्विस बुक। सर्विस बुक कितने लोगों ने देखी है अपनी? मैंने देखी है मैम। देखिए मैम। अभी देखी सभी है। ने देखी। सर्विस बुक देखी है, तो उसमें क्या क्या देखा है आपने, वो बताइए। ज्वाइनिंग के टाइम से एंट्रीज हैं उसमें। कब कब प्रमोशन हुआ है, कब कब उसमें पे फिक्सेशन किया गया है, मतलब A to Z चीजें उसमें फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड। यस, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ सबने चेक की है, सही लिखी है? यस यस मैम। ओके, तो बनते समय चेक कर लिया। यस, वो आपने तभी चेक की थी, ठीक है। उसके बाद में आप 2 साल एजी ऑफिस में थे ट्रेनिंग के लिए, फिर आपका पोस्टिंग हुआ फील्ड में, ठीक है। फील्ड से आपका ट्रांसफर होता है एवरी 3 इयर्स। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आप लोग क्या चेक करते हो? सर्विस बुक आप या तो साथ में लेके जाएंगे, या आपका डिवीजन जो है अपडेट करके भेजता है। नहीं, डिवीजन अपडेट से करते सारे एंट्री अपडेट करवा के मैडम भिजवाता हूँ मैं। इसलिए यहाँ Yes. ट्रांसफर हो जाते हैं ना, सारा एंट्री अपडेट करा के उधर ही भिजवाता हूँ। ओके, सारी एंट्रीज अपडेट करते हो, इसका मतलब आप क्या करते हो? नहीं, मैं जब लिव पे गया था, लिव की एंट्री हुई कि नहीं वो चेक करने का। हाँ। कुछ अलग पे फिक्सेशन हुआ, उसकी एंट्री सर्विस बुक में हुई कि नहीं, हाँ, और ट्रांसफर हुआ उसका एंट्री हुआ कि नहीं, ट्रांसफर जब होके जाए, प्रमोशन हुआ उसकी एंट्री हुई कि नहीं, वो सारा चेक कर लेता हूँ मैडम। तो ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस। हाँ, लास्ट पेज में पे वेरिफिकेशन का रहता है कॉलम, वो हर पे साल करवा के ले लेता है, पे वेरिफिकेशन का रहता है। पे वेरिफिकेशन इज डिफरेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस इज डिफरेंट। हाँ, मेरा आपने सर्विस मैडम 20 इयर्स का वेरिफिकेशन हो चुका था। ओके, ठीक है। आपने देखा है, Yes. आपको पता था, बाकी जिनको पता नहीं है उनको मैं बता रही हूँ कि आप डिवीजन से निकलने के पहले वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस करवा लीजिए। एक ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट रहता है सर्विस बुक में ही फॉर वेरिफिकेशन, और वहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की साइन भी लगती है। एक बार आपका ट्रांसफर हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ट्रांसफर हो गया, तो बहुत डिफिकल्ट जाता है वेरिफिकेशन करवाना। ठीक है, ठीक है। यस मैम। लीव नोटिंग पीएल यस है, मैम। कम्यूटेड है, एचपीएल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, सब अपडेट आप करवा लीजिए। बाद में रिटायरमेंट के टाइम में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, ठीक है। इसलिए आपका जो नाम है अभी से आप देख लीजिए, सर्विस बुक के फर्स्ट पेज पे जो नाम है वही आपके आधार कार्ड पर नाम है, वही आपके पैन पर है, और वही आपके पासबुक पे है, ठीक है। ये चीज आप मैडम एक डाउट था, हाँ, अगर अलग हो तो क्या करने का मैडम? सर्विस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट शेयर कर सकते हो, कैसा फॉर्मेट है? आपके सर्विस बुक में आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ है उधर, और जी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बना हुआ है सर्विस बुक में, आप देखोगे तो उसमें सिर्फ कब से कब तक आप वहां थे, जी पीरियड, जी फ्रॉम टू डिवीजन का नाम रहता है, और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन रहता है उधर। ठीक है मैडम। पीए कर एज ए पीए करके साइन करते हैं, एग्जीक्यूटिव तो साइन नहीं करता, लेकिन पीए साइन करता है उस पे। ओके, जो भी करता है पर उनका स्टैम्प और ऑफिशियल साइन जिसका भी है, ओके ओके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसका साइन वहां पे रहना चाहिए, ठीक है। ओके बाद में नाम ये जो मैं बता रही हूँ वो भी चेक कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन, पासबुक और आपका सर्विस बुक, उधर नाम आपका एक एक सेम ही चाहिए, एक स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेस का मिस्टेक भी नहीं चलता है। ये पेंशन के टाइम में भी अफेक्ट करता है अगर कुछ डिफरेंस है तो। आधार, पैन और मैम पासबुक, सर्विस बुक, ओके। आपका बैंक का जो भी पासबुक है, और सर्विस बुक। और आप जब भी ट्रांसफर होते हो लीव बैलेंस चेक करना ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई एनीवन इज ड्यू फॉर रिटायरमेंट विद इन 1 or 2 years? नहीं है ना ऐसे कोई, ठीक है। तो वो उसका डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। आप लोगों के नॉमिनेशन के फॉर्म्स अभी एनपीएस
ही ले रहे हैं ना सब लोग, तो एक नया फॉर्मेट आएगा Yes, ma'am. सर्कुलर, उसमें भी भर के भेजना है, प्लस ये चेक करना है कि फॉर्म जो है नॉमिनेशन के वो सही सब लोगों ने भरे हैं कि नहीं। आप जाते हो एक जगह से दूसरे जगह, एलपीसी मिलता होगा आपको, वो होता है ठीक ठाक, जी मैम। उसमें आप लोग देखते हो सब एंट्रीज है कि नहीं, आपको चेक करना है एवरी टाइम। आपका अगर क्वार्टर्स रहते हैं क्या उधर आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, अभी लाइसेंस फी ये वो, उसके बाद में CGIS का नोटिंग भी लेना बहुत जरूरी है। ये एक हमको मेजर इश्यू आता है एट द टाइम ऑफ योर फाइनल पेमेंट, रिटायरमेंट के टाइम में, क्योंकि अभी अभी जो रिटायर हो गए, सोचो 10 साल पहले वो जो डिवीजन में थे वहां से अगर CGIS का नोटिंग नहीं लिया, CGIS का फुल फॉर्म मालूम है ना? हाँ जी, सेंट्रल Central Government Employees Insurance Scheme. यस, तो अगर उसका कटिंग नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 10 साल पहले आप वो जो डिवीजन में थे वहां से नोटिंग लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अभी भी मतलब सर्विस में है, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ लिविंग द डिवीजन, अभी भी आप देख सकते हो कि आपका बराबर नोटिंग हो रहा है कि नहीं। पर अगर आप छोड़ के जा रहे हो डिवीजन, तो वो डिवीजन से नोटिंग लेना, ये पीरियड के लिए ये रेट से हमारा कटिंग हुआ है। रेट्स मालूम है सबको? ग्रुप 2 के लिए यस मैम, 64 और Yes, ma'am. ग्रुप 1 के लिए 6.1। जिसके घर में कोई छोटा बच्चा, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। किसी छोटे बच्चे की आवाज आ रही है, उसको मत म्यूट करो, अपना माइक म्यूट करो, फिर बोलते टाइम अनम्यूट कर देना, ठीक है? ग्रुप सी के लिए 30 है, ग्रुप बी के लिए 60 रुपीज है, और ग्रुप ए के लिए 120 रुपीज है, ठीक है? Yes, ma'am. मैम ये किस चीज का है पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस? ओके ओके मैम। और बीच में जरूरत नहीं पड़ी किसी को, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके ये जो सब्सक्रिप्शन है उसके पैसे वापस आपको मिलते हैं। बट अगर बीच में कुछ हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो जो सम से वो इंश्योर्ड है वो मिलती है, बट एट दैट टाइम आपका सब्सक्रिप्शन पूरा रहना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग कट करते हैं ये। और अभी आपके जैसे प्रमोशन हुए तो बीच में हुआ, किसी का दिसंबर में हुआ, तो आपका जो है नए रेट से इंश्योरेंस जो है वो जनवरी से कटेगा। किसी का अगस्त में प्रमोशन हुआ, अभी का नहीं बता रही हूँ मैं, और आगे आप ग्रेड 1 बनोगे कुछ भी, तो अगस्त में प्रमोशन हुआ, तो अगस्त से आपको न्यू रेट नहीं कट करना है, आपको जनवरी से करना है, नेक्स्ट जनवरी, ठीक है ना? यह बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो अमाउंट पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बात आपको खुद ये को ध्यान रखना है। हाँ जी बताइए। सर्विस वेरिफिकेशन वाला जो आपने बताया था कि सर्विस बुक में लास्ट में है, ये सेवा पड़तालरी अभिलेख वही होता है क्या? यस, वही है कि नहीं? दो हाँ मैम है, एंट्रीज तो अपने लास्ट में होगी। है बट एंट्री नहीं है। एक्चुअली मैंने डुप्लीकेट सर्विस बुक बनवाई है अपनी, तो अच्छा, उसमें अभी एंट्री तो नहीं है लास्ट पेज पे, लेकिन मैं कर दूंगा या करवा दूंगा। तो पहले 2 साल की तो एजी ऑफिस से होगी, जितने दिन आप एजी नहीं ऑफिस मैम, में थे ट्रेनिंग। नहीं वो ओरिजिनल में पहले होगी ना, मैंने डुप्लीकेट सर्विस बुक खुद बनाई है अपनी, अच्छा, उसकी तो नहीं है। ओरिजिनल है आपकी? ओरिजिनल में देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ ओरिजिनल मैं डिवीजन में जाके चेक करूंगा। नहीं एजी भेजी गई है ना अभी, तो वो पे प्रोटेक्शन उस करने की। ठीक है, वो डुप्लीकेट का आप देख लेना, पर मैं ओरिजिनल सर्विस बुक की बात कर रही हूँ कि वहां पे आप ओके। सब लोग check कर लो। जिनकी एजी ऑफिस की एंट्री नहीं है उन लोग वापस एजी ऑफिस भेज सकते हैं सर्विस बुक, पर ऐसा तो कोई केस होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट सर्विस बुक। अच्छा मैम, पुराने डिवीजन में अगर नहीं उसमें एंट्री की हो तो क्या पुराने डिवीजन में भेजनी पड़ेगी क्या उसको दोबारा? यस, आप वापस भेजिए, एंट्री करा लीजिए, उसको ही कहते हैं अपडेटेड सर्विस बुक। आप सर्विस बुक अपडेट मतलब सिर्फ लीव अपडेट करना नहीं है, आपका वेरिफिकेशन,
आपका इंक्रीमेंट्स के अगेंस्ट साइन भी करते होंगे ना एवरी ईयर आप लोग। मैम साइन तो ये Increment- लोग नहीं लेते हैं इंक्रीमेंट में, पूछ लो एक बार आप, ये तो नहीं लिया फिलहाल हमारे डिवीजन में। इंक्रीमेंट पे साइन लेना चाहिए। ठीक मैम है, इंक्रीमेंट का ऑर्डर ऑफिस में निकालते हैं, उसका सर्विस बुक में वो एंट्री करते हैं, हम लोग के साइन तो लेते नहीं हैं। हाँ हम लोग का साइन नहीं लेते, एंट्री करते हैं वो लोग, ऑर्डर नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं। ठीक है, वो चेक कर लीजिए एंट्री है कि नहीं। ठीक है, यस मैम। उसके बाद में जो कोई डेपुटेशन पे जा रहे हैं उसकी एंट्री, अभी आपके प्रमोशन हुए उसकी एंट्री ली है सबने, ऑर्डर नंबर और ये डेट को ज्वाइन किया, ऐसे ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है बताने के लिए, पर बहुत डिफरेंस हो जाता है अगर है और नहीं है ऐसे टाइप में। क्योंकि आपका आएगा पे फिक्सेशन के लिए, तो आपने चार्ज लिया है उधर, ऐसी एंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए एज अ ग्रेड 2। आपकी एंट्री नहीं होगी मैडम वो तब तक लेटर तो उन्होंने अटैच किया, एंट्री लिया नहीं लिया ये कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि वो Yes, साथ के आप साथ ही लोग भेज दी थी सर्विस। देखो एवरी इवेंट की वहां पे एंट्री रहनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी ओके मैम। मैडम। छुट्टी आपकी, वेरिफिकेशन, इंक्रीमेंट्स, पे फिक्सेशन जब होगा तो ऑर्डर ही आप चिपका देना उधर। ये इन सब चीजों की एंट्री रहना जरूरी है। होम टाउन डिक्लेरेशन दिया होगा सबने, वो भी है कि नहीं एक बार देख लीजिए। हमको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आपकी एंट्रीज नहीं है बराबर, किसी कारण सर्विस बुक वापस भेजना पड़ता है, आपका पे फिक्सेशन टाइमली नहीं होगा, या लीव का मैटर है अपडेटेड नहीं रहता, कोई लीव का मैटर आ गया, फिर सब पहले से पूरा अपडेट करते बैठो, फिर पूरे डिवीजन के एंट्री नहीं रहे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो डिवीजन में नहीं रहता, उसका भी ट्रांसफर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। ठीक है, ये था सर्विस बुक का। उसके बाद में है प्रॉपर्टी रिटर्न फॉर्म्स, जिसमें हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, वो है आपके प्रॉपर्टी रिटर्न्स। एक तो ईयरली आपको फॉर्म भरना है, ईयरली रिटर्न भरना है, सब लोगों ने भेज दिया? यस मैम, नहीं भेज भेजा होगा दिया। तो अभी भेज दीजिए। उसमें आपने अभी तक जो भी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन दिया है वो सब इंक्लूड होना चाहिए, प्लस नया प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं एट दैट टाइम आपको एक फॉर्म भेजना पड़ता है। ठीक है, दैट टू इन न्यू फॉर्मेट। बहुत से लोग अभी भी पुराना फॉर्मेट, फिर उनको वापस भेजो, नया फॉर्मेट में बुलाओ, ये सब नहीं चाहिए। नया फॉर्मेट है, नेट पे भी मिल जाएगा आपको। मैम नए फॉर्म नंबर फॉर्मेट कौन सा रहेगा वो? क्या फॉर्म नंबर कौन सा है वो नया फॉर्मेट? अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार सेक्शन से कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। सेक्शन से नया फॉर्मेट आप लोगों को भेजा भी था, मेरे भेजा पास था? है, मैं शेयर कर दूंगा। यस, आप शेयर कर दीजिए फॉर्म का ये नंबर पढ़िए जो बोल रहे हैं। नहीं मेरे अभी पास है, नहीं हो, मैं सेशन के बाद में शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। ओके ओके ठीक है। हाँ उसमें भर के भेजना है, उसमें प्रॉपर्टी के डिटेल। अच्छा एक बात है, दिस इज प्रायर इंटीमेशन। आपने प्रॉपर्टी ले ली उसके बाद आप ऑफिस को इंटीमेट कर रहे हैं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि वो जाता है एजी सर तक। वो रिकॉर्ड में लेना है आपके तो एजी सर के अप्रूवल से लेते हैं, और प्रॉपर्टी लेने के बाद आप इंटीमेट कर रहे हो, ये चलेगा नहीं। इसके लिए भी एक सर्कुलर निकाला था, आपको बताया गया था कि कम से कम 1 महीने का समय हमको दीजिए फाइल पुटअप करके आपके रिकॉर्ड में उसकी एंट्री होने तक। मैं ठीक है, प्रायर परमिशन लेने के लिए 1 महीने पहले देना है, ट्रांजैक्शन होने से पहले। प्रायर परमिशन तो अलग है, प्रायर इंटीमेशन बोल रही हूँ मैं। अच्छा, तो 1 महीने पहले लेना है वो ट्रांजैक्शन होने के पहले। यस, अगर आपको 6 महीने पहले पता है सब है तो आप पहले भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि वहां पे डेट ऑफ एक्विजिशन लिखते हो आप फॉर्म में, वहां पे आपका आता है कि 6 महीने पहले आपको मालूम है, आपने अभी जून में ले रहे हो, अभी भी डाल दिया तो चलता है आपके रिकॉर्ड में, इन टाइम सब प्रोसीजर कंप्लीट होगा। पर एक तो 8 दिन पहले बताएंगे या प्रॉपर्टी लेने के बाद बताएंगे, फिर आपको मेमो इश्यू करो, ये बात सही नहीं है। आप
और दूसरी बात सोर्स, जितने आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है। आप लोन ले रहे हैं बैंक से, पर्सनल लोन ले रहे हैं, कुछ रिलेटिव से लोन ले रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। आज आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो फुल 50 लाख का डिटेल्स वो फॉर्म में एक कॉलम है ना, पर्टिकुलर्स का, उसमें आना चाहिए। मैम बैंक का ट्रांजैक्शन लोन हो जाता है उसके बाद वो कितने दिन बाद भेजना है उसके, और उसके क्या साथ क्या क्या ये ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बाद जो हाँ, इंटीमेट करना है और उसमें क्या क्या साथ में जोड़ना है फॉर्म के साथ? वही तो मैं बता रही हूँ। आप ये डिटेल्स, सोर्स ऑफ वो जो है आप खरीदी कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आया, वो आपको डिटेल्स देना है कि इतना मैंने लोन लिया, इतना मैंने रिलेटिव से लिया, रिलेटिव है तो ये इतना मदर से लिया, इतना इनसे लिया, ये पूरा वो अमाउंट का बाइफर्केशन उधर रहेगा। बाकी कुछ नहीं जोड़ा तो भी चलता है। फिर कुछ लोग इंडेक्स 2 का कॉपी लगाते हैं या बाद में भेज देते हैं, वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। और ये आप ही के लिए है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसका एंट्री आपके रिकॉर्ड में है। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस मैडम क्लियर है। मैं इतने स्तर की एक आप जो एट फादर टाइम एक बोलिए, 2-3 लोग साथ में बोलेंगे ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बोलिए। मैम अगर फादर और मदर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी डिक्लेयर करनी होती है क्या? नहीं नहीं, फादर मदर अगर आपको वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप भेजिए हाँ ना। जी। वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं तो आप इधर इंटीमेट कीजिए, अदरवाइज उनके नाम पे क्या आपको जरूरी नहीं है देना। ठीक है, ओके। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मैडम अगर आती है तो वो बाद में देना ना, जिस टाइम इनहेरिट करेंगे। हाँ, जब आपके नाम पे आती है तब दीजिए ना आप। क्या मैडम एक डाउट था मेरे को। मैडम मिसेज के नाम प्रॉपर्टी ये मैडम मिसेज परचेज कर दे तो उसका इंटीमेशन देना जरूरी है हेड ऑफिस को? आपके पैसे से ली क्या? नहीं मैडम। फिर नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम। वो उसका हिसाब जरूरत पड़ने पे हिसाब दे सकती है ना, उनकी प्रॉपर्टी है, कहाँ से ली, क्या ली। अगर आपके पैसे से ले रही है मतलब आप ले रहे हो पर उनके नाम से ले रहे हो तो वो आपको दिखाना जरूरी है। यस मैडम। ठीक है, ओके। ओके। उसके बाद में आता है अपार। ये भी, इसके लिए भी हमको बहुत करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है आपसे, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से। तो जो भी टाइमलाइन दिया है उसको प्लीज आप फॉलो कर दीजिए। ऐसा नहीं लास्ट डेट लिखा है चलो अप्रैल 30 अप्रैल लिखा है तो हम 29 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देंगे, फिर वो भी 1 महीना लेता है अपना, कोई कोई 4 महीने भी ले लेते हैं। फिर अगर उसमें कुछ लैक्यूनाज है हमको वो एपीआर वापस करना पड़ता है, फिर वो और 4 महीने बाद आता है। तो ये बहुत ही टायरिंग जॉब हो रहा है हमारे लिए। तो आपको जैसे अपार मिलता है, साल भर आपने काम किया है, वो आप इसमें लिख के जल्दी से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे के और फॉलो अप भी लीजिए आप। और अपने सब काम जो है डिटेल में लिखना है आपको, उसमें आपने क्या क्या किया है। ठीक है, इन शॉर्ट ऐसे थोड़ा सा ही बना के दे दिया ऐसा मत कीजिए, वो भी आपके फायदे का है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जल्दी दीजिए और फॉलो अप लीजिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भेजा है कि नहीं लिख के, पूरे कॉलम्स भर के। वो तो आप नहीं देख सकोगे पूरे कॉलम, पर आप एक बार इंश्योर कर सकते हैं कि पूरे कॉलम्स भरे हैं कि नहीं भरे हैं। और अगर आपके कुछ गैप शीट्स है, जैसे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ट्रांसफर हो गई, दूसरा है नहीं, 2-3 महीने बाद आया, तो वो 2 महीने का जो पीरियड है वो गैप शीट करके वहां पे लिखना चाहिए। कौन से पीरियड का लिख रहे हैं, जैसे 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक भरा, सितंबर आपका गैप शीट हो गया, अक्टूबर से नया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया, तो वो जो 1 महीने का पीरियड है वो वहां पे फॉरवर्डिंग में या अलग से एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि ये टाइम में कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं था इसलिए अपार नहीं लिखा, दिस मे बी ट्रीटेड एज गैप शीट। गैप शीट, ठीक है, उसको गैप शीट ही बोलते हैं। ठीक है, वो भी कराना जरूरी है।
2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, आप 2 अपर लिखते हो, उसका भी पीरियड बराबर लिखिए। बाद में ओवरलैप होता है या कोई पीरियड शॉर्ट होता है, ये सब नहीं चाहिए। और बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ट्रांसफर हो गई तो और भी मुश्किल होता है। तो टाइमली काम कीजिए तो प्रॉब्लम्स कम आते हैं आपको। ठीक है मैडम, इन केस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एपीआर नहीं भेजता तो फिर क्या करना होगा? नहीं, आप इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, आप फॉलो अप लीजिए। नहीं मैडम, बोलने के बाद भी नहीं बोला नहीं भेजूंगा, आपका क्या रोल है? मैं भेजू नहीं भेजू, आपका क्या रोल है? तो यहाँ पे इंटीमेट कीजिए ना, ऐसे टाइम में हम लोग फॉलो अप। इंटीमेट भी किया एज ऑफिस को, फिर क्या होगा सर मैडम? नहीं तो हम लोग कॉल करते हैं ना उनको, हम हमारे लेवल से एक्शन लेते हैं। पर ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं हम भेजे नहीं भेजे, आप बैठे हो फिर साल भर बाद आप बताते हो मैंने तो नहीं उसी मैडम, टाइम। मैंने विद इन टाइम दिया है, उसका मैंने रिसिप्ट है मेरे पास डिवीजन में, जो हाँ। मैंने सबमिट किया है उसका रिसिप्ट है। उसको 2-4 करस्पॉन्डेंस भी किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई ऑफिशियली लेटर से कि भाई आप मेरा वो कीजिए, और ट्रांसफर होके चला गया। मेरा उसका मैटर था तो वो एजी ऑफिस तक मेरा मैटर गया था, तो जानबूझ के बोले नहीं भेजूंगा, आप जो करना वो कर लीजिए। तो मैं तो क्या करूँगा? मैम करते हैं वैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब करते हैं Generally मैम होता है, एग्जीक्यूटिव generally होता है, इंजीनियर। एक्चुअली नहीं भेजते हैं जानबूझ के। ऐसे मैंने टाइम बोला में खराब लिखना लिख लीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं, जो भी आपको इच्छा है वो लिख लीजिए, लेकिन लिख के आप ये जो भी इसको तो भेजिए कम से कम। हाँ हाँ प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ऐसे टाइम में ना आप टाइमली हमको इंटीमेट कीजिए। ऐसे नहीं 6 महीने 8 महीने आप ही राह देख रहे, हमको कैसे समझेगा उधर क्या प्रॉब्लम है कि ट्रांसफर होके मुझ के नहीं दे रहा है। हमको भी पता नहीं चलता उन्होंने भेजा नहीं भेजा, हमको कैसे पता चलेगा? बता ये नहीं बात सही कह रहे हैं। देखो एक तो रिमाइंडर जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, और ज्यादा लेट हो गया हम लोग आपको फोन करते हैं हाँ कि नहीं आपका मैडम, फोन आया था, आपका फोन आया था तभी हमको पता चला कि हमारा सीआर नहीं गया। तो उसके बाद मैंने उनको करेस्पॉन्डेंस किया, ऐसे ऐसे जो ऑफिस से फोन आया है, तो हम हमारा सीआर टाइमली रिमाइंड, पहले तो हम उनको ही रिमाइंडर भेजते हैं, टाइमली रिमाइंडर 2-2 महीने में। 2 रिमाइंडर के बाद भी अगर आपका अपार नहीं आता है तो एक बार हम लोग आपको फोन करते थे कि आप थोड़ा अपने लेवल पे देख लीजिए। ठीक है ना? ऐसे टाइम में अगर ऐसा कुछ आपको जवाब मिला तो आप तुरंत हमको इंटीमेट कर सकते हैं। इसके लिए ना आप जो भी अपार भरते हो उसका एक जेरोक्स अपने पास रखते जाओ। जीरोक्स, लेकिन मैडम फिर भी नहीं भेजा, उसके 2 साल का मेरा सीआर रखा हुआ। एक बार भेजा भी था उन्होंने भेजा भी था आपको। एट दैट टाइम हम रिव्यूइंग ऑफिसर को ऐसा ऐसा केस है करके पुटअप करते हैं। रिव्यूइंग ऑफिसर डायरेक्ट आपको आपका अपार लिखेगा फिर, समझे? पर उसके लिए इन टाइम चाहिए ये सब प्रोसीजर। 1 साल के बाद वो रिव्यूइंग ऑफिसर भी नहीं लिखेगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा आपका अपार लिखने का। इसलिए आपको वॉचफुल रहना जरूरी है। इसलिए आपके पास अपने अपार का जेरोक्स रहना जरूरी है कि आप वो जेरोक्स हमको भेज दीजिए कि ये हमने भरा था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सबमिट किया था, उसने नहीं भरा, ठीक है, रिव्यूइंग ऑफिसर, बट ये सब प्रोसीजर इन टाइम होना चाहिए, समझे ना? ओके ओके। और लीव पीरियड का असेसमेंट नहीं होगा अगर आपने बहुत ज्यादा लंबी लीव ली है, 1 साल 1.5 साल, उसका असेसमेंट नहीं होगा क्योंकि आप ड्यूटी पे थे ही नहीं कभी। और लीव की बात निकली है तो लीव आप मुंबई रीजन के है ना, तो आपका तो मुंबई ऑफिस आता है डायरेक्ट, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लीव पे गया, मुंबई ऑफिस को भी नहीं मालूम, नागपुर ऑफिस को भी नहीं मालूम। ऐसे केस में हम लोग आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। अभी तो वैसा होगा नहीं, कोरोना में थोड़ा बहुत हो गया था, फिर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रिकमेंडेशन चाहिए। आप लॉन्ग लीव पे जा रहे हो तो लॉन्ग क्या, शॉर्ट लीव भी है, ईएल है, EXL है, HPL है, कम्यूटेड है, कुछ भी है, लीव जब फॉरवर्ड होती है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रिकमेंडेशन से फॉरवर्ड होती है। मुंबई ऑफिस, आप लोग मुंबई एरिया के हो, हमारे पास आपका लीव का सैंक्शन आता है सिर्फ कि इतने से इतने तक ये ऑफिशियल छुट्टी पे था, तो आपके वो पर्सनल फाइल में लग जाता है। इससे ज्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं रहते, बैलेंस कितना है क्या है, ठीक है? ठीक है, क्लियर? मतलब ई सर्विस बुक नहीं होगा क्या? ई सर्विस बुक का चल रहा है क्या प्रोसीजर डिवीजन में? पूछना पड़ेगा। चल रहा है लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है। चालू है मैडम? कुछ डिवीजन में चालू है क्योंकि मैडम। ऑपरेशन मंगा रहे,
आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिवीजन के लिए हम लोग यहाँ से भेजते हैं। अगर ई सर्विस बुक होता है तो बहुत ही अच्छा है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी। हमको हम भी चेक कर सकते हमारा हैं। मैडम WRD में पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिपार्टमेंट हमारे स्विच होते रहते हैं। WRD रहेगा, कभी PWD रहेगा, तो हाँ। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। अच्छा, सही बात है, आपके बाकी लिए फील्ड लेते ऐसी है कि जिसमें हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है वो। ठीक है ना, देखते हैं जैसा जैसा होता है। अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ तो भी आप लोगों का इसमें होगा नहीं, क्योंकि एंट्री तो डिवीजन को करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ जब तक मैनुअल है आप लोग देख सकते हो। 2-4 महीने में एक बार अपनी सर्विस बुक मंगा लीजिए, या तो कुछ इवेंट्स है तब मंगा लीजिए, जैसे प्रमोशन का एंट्री है, पे फिक्सेशन है, इंक्रीमेंट्स है। तो साल में कम से कम एक बार तो आप अपना सर्विस बुक देख ही सकते हो इंक्रीमेंट के टाइम में, इंक्रीमेंट का एंट्री हुआ कि नहीं, तभी पूरा चेक कर लेना। सभी CGIS का हो रहा है कि नहीं, लीव का हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और LTC और होम टाउन के बारे में मुझे बताना है कि आपको LTC और होम टाउन के लिए प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। मैंने 19 में लिया था, 20 में लिया था, मेरा एनकैशमेंट नहीं हुआ, अब आप सैंक्शन के लिए भेज रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। जैसे लीव हम प्रायर सैंक्शन करा लेते हैं, वैसे ही होम LTC और होम टाउन के लिए प्रायर परमिशन लेना जरूरी है ऑफिस का। मैम इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम प्रायर इंटीमेशन देते हैं, मतलब EL के साथ में लेटर लिख के हम रिसीविंग ले लेते हैं। पर काफी बार जैसे अभी मेरे वाले केस में क्या हुआ कि मेरी पे फिक्सेशन के लिए नागपुर गई हुई थी सर्विस बुक, तो डिवीजन ने वो आगे फॉरवर्ड नहीं की मुंबई AG को। मैंने आने के बाद पता किया तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आपकी सर्विस बुक दी थी, इसलिए मैंने नहीं भेजी। तो उसमें सर मैम मैंने क्या किया कि आप एप्लीकेशन भेज दो, सर्विस बुक आप आने के बाद भेज दो। सही बात है, हाँ वही करना है। अभी आप एक बार देने के बाद ये आप इंश्योर कीजिए कि आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई है कि नहीं। पर मैम अगर देने के बाद हम छुट्टी पे ही चले जाते हैं तो आने के बाद ही पता कर पाएंगे ना। तो देने के बाद छुट्टी पे ऐसे कैसे, तो आप मैम 1 वीक पहले दिया, वो प्रोसेसिंग में टाइम वेरी लगा नेक्स्ट देते डे हैं आप कभी छुट्टी देते एग्जीक्यूटिव। क्या? एक दिन का टाइम। 1 वीक पहले भी दिया तो मैडम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कई बार ऐसे होता है कि फील्ड की वजह से कहीं मुंबई ऑफिस में है या कहीं है, तो वो आने के बाद ही भेजेंगे, वो प्रॉब्लम आती है हमें। ठीक है ना, एक आध दो केस देखिए, एक आध दो केस हम लोग भी कंसीडर करते हैं, समझते हैं, पर ये अगर रूटीन बन जाता है, प्रैक्टिस बन जाती है, तो ही हमको आपको ऐसे वर्कशॉप में बताना पड़ता है कि ऐसे मत कीजिए, दूसरी है ना। प्रॉब्लम ये है मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो स्टेट गवर्नमेंट वाले फॉलो नहीं करते। इनका क्या है कि 1-2 हफ्ते तो डिले इन्हें करना ही करना है, कितना ही आप इंटीमेट कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद भी मतलब स्टाफ भी ऐसा लेथार्जिक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी उन्हें नहीं बोलते हैं, दिक्कत वो नहीं, आती है मैम। आप एक दो बार अच्छे से फॉलो अप लोगे ना, एक दो बार उनको फोन पे बताइए भेजी क्या भेजी, उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो DA लोग आते हैं इनका काम हमको इंस्टेंट करना पड़ता है, या नहीं तो वो 4-4 बार पूछते हैं। आप आदत लगाइए ना, फिर हर डिवीजन में ऐसे ही होगा। कोशिश तो करते ही है मैम, पर ठीक है ये वो तो। लोगों का भेजना ही पड़ता है, इनके ऑफिस में लगता ही है, जल्दी भेजना ही है। आप आदत लगाइए, फॉलो अप लेते रहिए, ठीक है। पर ये ओके पॉइंट मैम। है, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट है आपका, आपको अगर कुछ भी मेमो मिलता है या लेटर मिलता है, कभी कभी ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग लेटर लिखते हैं। अगर आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कुछ भी कंप्लेंट आई, ये एब्सेंट रहते हैं या फ्रिक्वेंटली लीव पे जाते हैं विदाउट सैंक्शनिंग, ऐसे भी कंप्लेंट्स आते हैं, या गायब हो जाते हैं बीच में, या प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं डिवीजन में, ऐसा कुछ भी कंप्लेंट आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, डायरेक्ट मेमो हम लोग किसी को देते नहीं। तो उसका जवाब देना आपका काम है कि नहीं। एक बार लेटर गया, उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। हाँ जी बोलिए, सबके कैमरे ऑफ हो गए, चाय पीने गए क्या इतने जल्दी? नहीं मैम यहीं पे है। ढाकला दिख रहे हैं मुझे, सबके अच्छे तो है, फ्रेश है। आप लोग ऐसा भी नहीं सो के उठे, क्यों कैमरा ऑफ करके रखे हैं सबने?
लास्ट क्लासेस में मैडम क्या हुआ था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था उसकी वजह से, तो इसीलिए मैम ने ही ऑफ करने के लिए बोला। नेट अच्छा स्ट्रांग है सबका, सबके मोबाइल में भी नेट है देना। नहीं, ओके, पिछली लास्ट क्लास में जया मैम ने ही ऑफ करने के लिए बोला था क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी, वैसा कोई इशू। अच्छा नहीं, इधर कुछ नहीं वो क्लास में एक्चुअली फैकल्टी प्रॉब्लम को नहीं है कुछ अभी। प्रॉब्लम अच्छा लग रहा किसी से बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैडम को, तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं बता दूंगी आपको। हाँ, तो लेटर का रिप्लाई आपको देना जरूरी है, समझे क्या? यस मैम। आप कुछ कॉग्निजेंसी नहीं लोगे तो कैसे समझेगा आपका साइड से आपको क्या कहना है? ठीक है, उसके बाद में अगर आपको मेमो दिया जाता है उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि 3 दिन में रिप्लाई देना है या 7 दिन में देना है या 15 दिन में देना है, क्योंकि जो भी मैटर है वो एग्जामिन करके हमारे हायर ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि इनको कितना टाइम देना है रिप्लाई के लिए। उसको भी इग्नोर किया जाता है, बहुत बार देखा है मैंने कि आता ही नहीं, हमको रिमाइंडर देना, अरे दो भाई नहीं तो तुम्हारे ऊपर कुछ एक्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों? सेक्शन में बैठ के हम लोग एक ही ऑफिस का स्टाफ है ना? हम लोग ऐसा नहीं समझते डीए कैडर मतलब स्टेट का स्टाफ है, आप लोग हम लोग कलीग्स है। तो हम ये सोचते हैं कि जो भी है पुटअप हो तो हमको कुछ लिखने के लिए स्कोप तो चाहिए। 8 दिन 15 दिन 1 महीना आप लोग अगर रिप्लाई नहीं भेजेंगे हम लोग क्या पुटअप करेंगे बताइए फाइल। तो ये प्लीज आप नोट कीजिए कि आपको या पर्सनली आपको आपके नाम से कुछ आता है इन एक्सप्लेनेशन, आपको कुछ भेजना है इन रिप्लाई या मेमो आता है, तो उसमें जितने दिन लिखे हैं उतने दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है। यस ठीक मैम, है, ये रिप्लाई जो और ये प्रॉपर्टी जो रिटर्न होता है उसको ऑनलाइन भेजना जरूरी है, और साथ में हार्ड कॉपी भी, या ऑनलाइन भेजा तो चलेगा बिल द्वारा? चलेगा, अभी ऑनलाइन भी चलता है पर हार्ड कॉपी है तो ज्यादा अच्छा है ना। अभी किसी के बाकी है क्या भेजने के? नहीं मैम, भेज दिया। भेज दिए ना सबने, जिसने नहीं भेजा होगा भेज दीजिए, ठीक है? यस मैम। कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? और आपको कुछ लगता है? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बीच में सर्कुलर निकला था बिल रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, सब लोग कर रहे हैं? हाँ मैडम। यस मैडम, बना लिया। यस मैम, ऑब्जेक्शन हाँ मेंटेन कर रहे हैं ना, ओनली नॉट टू ओपन यू शुड मेंटेन इट। हाँ, उसमें कुछ एंट्रीज रहना चाहिए। ऑब्जेक्शन बुक, बिल रजिस्टर, ये आप लोग देखते होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। ठीक है ना? कर रहे कि नहीं? सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेंटेन कर रहे कर रहे हैं मैडम। मेंटेन कर रहे हैं। कर रहे हैं। यस, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। अभी आपके जिनके प्रमोशंस हुए उनका भी बता रही हूँ, रिलीविंग का ऑर्डर, ज्वाइनिंग का ऑर्डर। मुंबई एरिया के आप हो तो मुंबई एरिया में भेजो, एक कॉपी नागपुर में भी भेजिए, आपके पर्सनल फाइल में लगा रहेगा, ठीक है? और सर्विस बुक में एंट्री, ये अभी के लिए आपको जरूरी है, और ज्वाइनिंग डेट का नोटिंग सर्विस बुक में। बाकी तो मुझे दिख नहीं रहे। यस यस मैम एडिशनल डिवीजन का नोटिंग तो नहीं रहता ना सर्विस बुक में? एडिशनल डिवीजन का सर्विस बुक में नहीं रहता है, पर आपके पास है ना, आपने अगर चार्ज लिया तो आप कॉपी भेज सकते हो ऑफिस को। आपके पास अगर चेंज हो रहा है एडिशनल चार्ज, वो जो डिवीजन है वहां पे आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग का कॉपी आप आपके ऑफिस को भेजते हो कि नहीं? यस मैम, भेजते हैं मैम। यस मैम। भेजते हैं मैम। रेगुलर, क्योंकि मुंबई एरिया का मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोग है उनको फोन करके पूछने तक वो बताते ही नहीं हमने चार्ज लिया कि नहीं लिया। ऐसा कैसे है क्या वहां पर भी कोई? एडिशनल के ऑर्डर में लिखा ही होता ना भेजनी है।
एडिशनल के जो ऑर्डर निकलते हैं उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको मुंबई एजी को रिपोर्ट करना है जब चार्ज लेते हैं। और आपने अगर आफ्टरनून में चार्ज लिया तो भी आपका पे फिक्सेशन फोन से होगा, इतना याद रखिए। 17 दिसंबर को आफ्टरनून में चार्ज लिया तो भी पे फिक्सेशन 18 दिसंबर से ही होगा, ठीक है। और एक डाउट था मैम। हाँ बोलिए। अभी जो करंट अपना जो करंट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट को हॉलीडे था तो थर्ड को ज्वाइन हाँ। किया है, तो अभी डीएनआई के बारे में क्या डिसीजन है मैडम वहाँ पे? वो हमने हेडक्वार्टर को भेजा है क्लैरिफिकेशन के लिए, अभी तक क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है ना। मैडम पर 2009 में क्लैरिफिकेशन आया हुआ है ना? 2009 में जो है ना वो 6th पे रिकमेंडेशन का था, 7th पे के बाद में कुछ मैडम आया नहीं। उसकी जो वर्डिंग आप देखेंगे उसमें यही लिखा हुआ है, इफ एम्प्लॉय जॉइन ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ही विल बी, मतलब उसकी 6 मंथ की सर्विस 1 जनवरी को काउंट हो। हमें 6 मंथ की सर्विस ही चाहिए इंक्रीमेंट के लिए। यस, बिल्कुल सही है, आप लॉजिक भी अपना सही है, पर एक बार हेडक्वार्टर गया है क्लैरिफिकेशन के लिए, डीओपीटी को भेजा है क्या? आने तक हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मैडम डीओपीटी को भेजा है क्या? अपने हेडक्वार्टर भेजिए। ठीक है ना, वो तो मैडम सबका इशू रहेगा क्योंकि इस साल सबका ही वैसे हुआ है, तो वो क्लैरिफिकेशन तो मेरे को लगता है। तो जब तक वहां से आता नहीं है मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। ऐसे लॉजिकली मुझे भी लगता है कि संडे है तो उसमें हमारा कुछ फॉल्ट नहीं है और लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ? यस मैम, ये विकास का क्वेश्चन है मैम, ये सर्विस बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। अभी उसके लिए बताइए, आप बताइए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मैं क्या कर सकती हूँ? राइट टू प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। किसको? प्रोक्योरमेंट को लिखना पड़ेगा ना, तो प्रोक्योर करते हैं अपने जो सप्लाई वगैरह को देखते हैं वही देखेंगे ना उसे। ठीक है, ये मैं नोट ले लेती हूँ अगर मैं कुछ कर पाती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से जो निकला वही सर्विस बुक आपका कंटिन्यू होता है ना, कि नया बनता है उधर जाके? नया बनता है, नहीं मैम, वही कंटिन्यू रहता है। मैम क्या हुआ, सर्विस बुक एजी ऑफिस एक ही कॉपी मिली थी ना, तो बाद में डिवीजन में ही जो सर्विस बुक को तो अटैच करके ले लिया हूँ मैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस बुक अटैच करके लिया हूँ। हाँ, जैसा था आप क्या कर सकते हो, उसको बाइंड करवा ले सकते हो। वैसे तो अभी जो नए आए हैं, नए सीजीएलई 18-19, मुझे दिख रहा है कि अच्छी है क्वालिटी, मतलब अभी इम्प्रूव हुई है। जो अब आपके पहले के है, अगर कोई पन्ने फट रहे तो अभी से उसको लैमिनेट कर लीजिए, क्योंकि रिटायर होने तक हमको वो ओरिजिनल सर्विस बुक संभाल के रखना है ना। एक हाथ पन्ना उसमें से फट गया, गायब हो गया तो हमको प्रॉब्लम आ सकता है आगे। ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ क्वेरी है? और कोई मैटर जो आपको लगता है, आप फील्ड पे हो, आपके प्रॉब्लम्स आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कर सकते हैं? मैं एक पर्सनल है थोड़ा। हेलो। हाँ बोलिए। मैडम मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए एक इंटीमेशन एप्लीकेशन दिया था, वो अभी तक उसका रेस्पॉन्स कुछ नहीं आया है, लगभग 2 महीने हो गए ना। उसमें कोई की उसमें कमी है या दोबारा कैसे भेजना है, क्या ठीक करना है या क्या प्रोसीजर? रिन्यूअल कौन, विकास सिंह क्या? हाँ जी, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डाला हुआ है कि आपको इंटीमेशन, आपको सिर्फ उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ हमें मिल गया, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या उसमें कुछ चेंज करना है या कुछ और करना है, वो अगर पता चल जाए तो। रिन्यूअल के लिए आपको परमिशन लगता है क्या पर ऑफिस का, वो बताइए आप पहले। हाँ जी, पासपोर्ट ऑफिस उसकी साइट पे दिया हुआ था जो में लगता है मैम, गवर्नमेंट वाला अपेंडिक्स एम है। ओके। उसमें केवल आपको इंटीमेट करना है या आपसे क्लियरेंस लेना है, तो इंटीमेट किया हुआ है तो उसको एक्नॉलेज चाहिए उनको कि भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता है। ओके, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मेल किया हुआ है मैंने 2 बार। हाँ जी, मेल किया था? हाँ जी, मेल 2 किया बार था? किया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है ना। ऐसे टाइम में आप एक बार ऑफिस को रिमाइंड कर सकते हो कि मेरा 2 महीना हो गया, 1 महीने में करना चाहिए था आपने, है ना, ये अभी तक आया नहीं है करके। ऑफिस का फोन नंबर क्या है मैम? उठता नहीं है मैम।
कितने किसको साल बोल हुए आपको सर्विस को कितने साल हुए? 5 साल हो गए मैम, 5-6 साल हो गए। 7 साल हो गया मैडम विकास। फोन नंबर ढूंढो। लोग तो जिससे काम है वो सीट का, अकाउंटेंट का, AA का, सीनियर AO का मोबाइल नंबर भी फाइंड आउट करके रात के 8 बजे भी फोन करते हैं। ये भी है। मैं देता देखो हूँ एक हमारे ऐसा नंबर। सब स्टाफ और ऑफिसर साइड से एक रिक्वेस्ट है कि अंटिल इट इज वेरी अर्जेंट, आपको कुछ बहुत ही प्रॉब्लम ही है ना, थ्रेट फॉर लाइफ ऐसे आते हैं ना, किसी को कॉल या ऐसा कुछ, आप कहीं फंस गए हो ये वो, अनलेस एंड अंटिल दैट सिचुएशन, आप रात को 8 बजे या सैटरडे या संडे या हॉलीडे प्लीज मोबाइल पे कॉल मत कीजिए। सब लोग परेशान है। मैसेज करके पहले पूछ लें फिर करें। यहाँ के एरिया के, अरे मैंने छुट्टी डाली थी, अरे मेरा ये, अरे क्या आदमी घर में है, कोई गाड़ी चला रहा है रात में, कुछ सैटरडे संडे अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसे इसमें क्या होता है, सच्ची में आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, सामने वाला फोन नहीं उठाएगा। तो ये जो टाइम स्लॉट है ना, ये इमरजेंसी के लिए रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके फोन कॉल्स हमको उठाना नहीं है, पर उठाने के बाद अगर आपका इतना सा काम है तो अरे ये तो वर्किंग डे में भी हो सकता था ना, नेक्स्ट डे मंडे भी हो सकता था, उसके लिए संडे फोन करने की जरूरत नहीं थी। मैम लेकिन ऑफिस के फोन पे जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं होता है, ये बात भी सही है। हम पहले ऑफिस में फोन करते हैं लेकिन ऑफिस से जल्दी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, तभी हम मोबाइल नंबर यूज करते हैं। अदरवाइज जब ऑफिस फोन मिलाते हैं वो 10 रिस्पॉन्ड नहीं मिलता का क्या मतलब है? मैम कभी कभी फोन जैसे वो आई मीन दूसरे सेक्शन में जो ट्रांसफर करने वाली कॉल होती है वो इनडेफिनेटली डिले हो जाती है। अभी इसमें घंटी सुन रहे हैं हम लोग और कभी कभी वो फोन ही नहीं पिकअप होता है, बेल 3-4 बार चली जाती है, फोन नहीं उठता है मैम। तुम दूसरे आप नंबर से सुनिए, करो ना। आप ठीक है भाई। सुनिए, डायरेक्ट 241 या 242 ये नंबर मांगे आप। WM1 का एक्सटेंशन है 241, ओके समझे क्या? हाँ, ओके क्योंकि अगर वहाँ पीबीएक्स में कौन बैठा है उसका प्रॉब्लम क्या है मुझे मालूम नहीं, पर सेक्शन में जब भी बेल बजती है फोन की तो कोई ना कोई उठाता ही है। मेरे सामने तो मैंने देखा नहीं कि रिंग बज रही और कोई उठा नहीं रहा। ठीक है। और बाकी शाम का टाइम, सुबह 7 बजे का टाइम, सैटरडे संडे का टाइम इमरजेंसी के लिए रख देते हैं हम लोग। किसी को कुछ इमरजेंसी है तभी आप किसी के पर्सनल मोबाइल पे फोन करोगे ये टाइम में, ठीक है। ओके मैम। बाकी ऑफिस टाइम में आप कॉल कीजिए, सब लोग उठाते हैं, आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आपको अपडेट चाहिए वो सब देते हैं। ऐसा कोई नॉन कोऑपरेटिव है नहीं सेक्शन में। यस मैम, आपकी तरफ से पूरी हेल्प मिलती है हम लोगों को, है ना। चलो, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग वहां पे बैठे हैं, तो वो हमारी ड्यूटी है, ठीक है। हम तो मैडम कोशिश सर को भी करते हैं, वो भी अभी भी जवाब देते हैं, सारा बताते हैं। देखो कोशिश सर तो बहुत हेल्पफुल है, ये बात तो है। सभी स्टाफ है, मैम भी हेल्पफुल है, सभी हेल्पफुल है, सभी है, तो आप भी थोड़ी केयर लीजिए। और इसके अलावा आपको कुछ पूछना है? वैसे 15 मिनट्स और है हमारे पास। आज का आपका लास्ट है। जिनके नंबर ब्लॉक हो गए उनको सबको अनब्लॉक करवा दीजिए। कहाँ से ब्लॉक हुए? पर्सनली ब्लॉक कर दिए मोबाइल से। किसने किए? तो इसका मतलब आप खुद ही समझ जाओ, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, कि पर्सनली ब्लॉक कोई साहू का तो पक्का ब्लॉक होगा। नहीं, मैंने कभी कॉल नहीं किया। तुम बोले ना कि तुम्हारा उठता नहीं है फोन, इसलिए मैं PNT पे मिलाता हूँ भाई। नहीं, वैसे ज्यादा तकलीफ कोई देता नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि स्टाफ की सबकी रिक्वेस्ट थी कि एक बार मैडम। कुणाल था वहाँ पे, तो इन्होंने लड़ाई कर लिया था उससे। किससे? पहले DA था वो। किससे लड़ाई की? किसने? कुणाल रंगारी। वो तो भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे तभी उनका फोन बज रहा था। हाँ, तबीयत खराब है तो फिर भी फोन बज रहा है। आदमी खुद को देखेगा कि फोन कॉल आती। चलो जाने दीजिए, ये वर्कशॉप में ऑफिस आवर्स के अलावा तो फोन करना ही नहीं चाहिए।
ऑफिस आवर्स में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके अलावा फोन करते हैं तो आपको उठाना भी नहीं चाहिए और लोगों को करना भी नहीं। नहीं देखिए, मैंने बताई ना, हमको ऐसे लगता है कि आप लोग हमारे कलीग्स है, आप फील्ड में है, हो सकता है आपने 8 बजे फोन किया या छुट्टी के दिन फोन किया, इसका मतलब आप तकलीफ में है, इसलिए हम लोग उठाते हैं कि कुछ इमरजेंसी होगी इसलिए उठाते हैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि अनलेस देयर इज एनी इमरजेंसी आप ऑफिस आवर्स छोड़ के काम ये मोबाइल पे कॉल मत कीजिए। ऑफिस आवर्स में लैंडलाइन नहीं लग रहा, मोबाइल पे किया तो भी सब लोग उठाते हैं, सब स्टाफ उठाता है, ठीक है ना? चलो, तो जो मैंने बताया प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना रिकॉर्ड सब अपडेटेड रखिए। जो भी मैंने फॉर्म्स फॉर्मेट्स बताए उसको आप फिलअप करके भेजते हैं तो थोड़ा केयरफुली भेजिए कि रिटर्न करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? ऑफिस आप कुछ भी अप्लाई करते हो किसी चीज के लिए तो हमको थोड़ा टाइम देते जाइए। आज सुबह मेल किया, शाम को पूछते हो गया काम, तो इन एडवांस आप भी किसी चीज के लिए अप्लाई करना है, कुछ भेजना है तो भेजते जाइए। इसके अलावा और कुछ? एग्जाम दे रहे, सीपीडी फॉर्म भेजा सबने, आपका आई कार्ड डाउनलोड होगा अभी, है ना? एग्जाम का सेंटर आएगा, वो सबका प्रिंट आउट पहले लीजिए, बाद में नहीं बोलना मेरा ओपन नहीं हो रहा। इवन ऑफिशियल जो हमारी है मेल आईडी सबको दिया हुआ, उसको बीच बीच में ओपन करके चेक करते रहना जरूरी है, कवच डाउनलोड किया कि नहीं आप लोगों ने, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। बाद में अगर हम आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे कुछ भेजते हैं तो मुझे नहीं मिला, या वो लास्ट मोमेंट पे पेपर में जाने के पहले 1 घंटा पहले देख के, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक बार मैं जयश्री मैडम से पूछ लूंगी कि हम लोग सेशन खत्म कर सकते हैं क्या। अभी आज का लास्ट डे है आपका सेशन का, ये ट्रेनिंग का, रिफ्रेशर का। वो सेकंड हाफ में और कुछ है, लेक्चर्स है किसी के? अभी 11:15 से थोड़ा सा ब्रेक देंगे हम लोग। इफ यू कैन कंक्लूड इट नाउ इट इज ओके, इफ नथिंग एल्स नीड्स टू बी डिस्कस्ड देन वी कैन गिव अ ब्रेक, and after that there will be 3 sessions on EDP. MS Word के ऊपर है, MS Word, Excel, उसके ऊपर है, PowerPoint. So we have sessions, we have entire day we have. Plus उनको एक test भी देना पड़ेगा. We are going to conduct a test also probably. We are deciding on it. So we'll be evaluating them also. बहुत खुश दिख रहे हैं सब लोग. So we are going to conduct a test also. Yes, madam. And thank you, madam. And thanks to everyone who has taken efforts to organize this training of the DA cadre. And thank you, madam, once again for inviting me here. हम लोग यहाँ पे अभी session conclude करते हैं, and all the best to all the officers. Yes, before we conclude, Aparna, I just wanted to ask anyone has got any questions, you know, like बहुत सारा बात हो गई थी, मैं भी सुन रही थी regarding this administrative matters. Yeah, any other person wants to ask anything? Please come up. Yes, ma'am. I want to ask. अपर्णा मैम, मेरी एक NIC की मेल आईडी जो नागपुर ने बनाई थी वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रही है। मैंने बहुत बार AG नागपुर में कांटेक्ट किया इसको लेकर के, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसका कौन बात कर रहा? अंकुर वर्मा? मैम अंकुर वर्मा, यस। अच्छा, आपकी NIC की मतलब ऑफिशियल जो आपको ईमेल आईडी दी हाँ, है, जो AG नागपुर से मिली थी ट्रेनिंग के लिए, वो वर्क नहीं कर रही है। लेकिन अभी ये मैम मुंबई रीजन से जो अभी दूसरी NIC की आईडी मुझे भेजी गई है वो वर्क कर रही है। साइट ट्रेनिंग के मैंने उसी से लॉगिन किया है, पासवर्ड वगैरह उसका है मेरे पास, लेकिन वो NIC वाली साइट का पासवर्ड अभी मुझे नहीं मिला। तो क्या मैं वही एज ए ऑफिशियल आईडी यूज कर सकता हूँ जो मुंबई रीजन से बन के मिली है? मतलब अभी आपने एक बार नहीं किया क्या? मैम लॉगिन आज तक हुआ ही नहीं। मैंने बहुत बार फोन करके बोला है नागपुर में, आई मीन कुणाल अंगारी से बहुत बार बोल चुका हूँ, और वहाँ पे जो ब्रिजेश बैठता है उनसे बात हो चुकी है, और मैंने लेटर भी शायद लिखा था ट्रेनिंग के समय जब मेरा एक इशू हुआ था। मैं DAG सर से भी मिला था जाकर के, उन्हें भी बताया था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तभी तो मेरी दोबारा ट्रेनिंग करवाई गई थी मैम, आपको याद होगा शायद। दोबारा, not because your email ID was not working.
उसके कारण नहीं हुई थी आपकी दोबारा कोई बात ट्रेनिंग, नहीं, बट दूसरे फिर भी ठीक है, मैं दोबारा ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ मेल आईडी वर्किंग नहीं हो चल रही है। ओके, अभी के लिए आपको वो ये जो मेल आईडी है ये cag.gov.in वाली है क्या? यस मैम, ये वाली तो अभी मैं जो जो यहाँ से भेजी गई है ट्रेनिंग वाला जो पोर्टल है, उस पे तो मैं उससे लॉगिन हो जाता हूँ, वो तो ठीक है, वर्क कर रही है अभी, लेकिन आप वाली में लॉगिन नहीं हो पाया था बस। ठीक है, ये आपको जो मिली है ये आप हमको शेयर कीजिए, हाँ मेल से भेज दीजिए ओके और आगे हाँ ओके। मैडम यस मेरा 17, 18 और 18, 19 का 2 साल का APR पेंडिंग है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, उसके लिए अभी मेरे को क्या करना होगा? कौन बात कर रहा है? लक्ष्मी नारायण मीना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पेंडिंग है? जी मैडम, उन्होंने एक बार भेजा भी था, लेकिन 10 नंबर का कॉलम इंटीग्रिटी वाला है, उन्होंने शायद बराबर नहीं भरा था, उसकी वजह से वापस रिटर्न हो गया एग्जीक्यूटिव के पास। उसके बाद उन्होंने वापस रिसेंड किया नहीं है इसको। नहीं किया, कुछ फॉलो अप किया आपको? 17, 18 एंड 18, 19 आपके पास जेरॉक्स है आधार का? हाँ है मैडम, मेरे पास जीरोक्स है। आप भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। ठीक है मैडम। दोनों भी ठीक है। ओके। और मैम एक क्वेश्चन ये है मैडम, पे फिक्सेशन होके कब तक आ जाएगी जो हमारा प्रमोशन हुआ उसको? आवाज आ रही ना, प्लीज तो अपना माइक म्यूट कर दीजिए। घर में कोई किसी के छोटा बच्चा है तो अपना माइक आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी पूछिए, कौन क्या पूछ रहा था पे फिक्सेशन का? मैडम पे फिक्सेशन कब तक हो जाएगा मैडम, जो DO2 प्रमोशन हुआ था उसके? बस चालू है अभी। सर्विस बुक थर्ड इंक्रीमेंट का ऑर्डर आया सबको? कौन सा मैम? थर्ड इंक्रीमेंट का नहीं आया मैम। ऑर्डर पहले, हाँ वो ऑर्डर पहले इश्यू होगा, उसके बाद में आपका सबका पे फिक्सेशन उसको टाइम में लगेगा। ठीक है, सर्विस बुक भेजी है सबने? यस मैम। सर्विस बुक में एंट्री है? यस मैम। कितने लोगों ने देखा? ज्वाइनिंग का एंट्री, प्रमोशन का एंट्री है कि नहीं? ईयरली एंट्री है कि नहीं पे अपना इंक्रीमेंट का? वो सब हमको करवाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लगता है। इसलिए मैंने पहले ही बोली सर्विस बुक पहले अपडेट रखो। आपका 2 साल का बीच में इंक्रीमेंट का एंट्री नहीं है, बताइए हम क्या करेंगे? आपका पे फिक्सेशन करना है अभी 21 से जनवरी 21, जनवरी 22, हाँ, और 19 से आपका इंक्रीमेंट का एंट्री नहीं है। आप बताइए क्या करेंगे हम लोग? मैम इसके लिए ऑफिस को एक इंटीमेशन पहले तो डिवीजन को लिखना चाहिए, क्योंकि डिवीजन वालों को नहीं पता होता है कि उनको हमारी सर्विस बुक में क्या एंट्री करनी है और क्या नहीं करनी है। तो अगर ये जैसे जब ऑर्डर निकलता है तो डिवीजन को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि इनकी सर्विस बुक अपडेट करके भेजी जाए, देन ही विल डू, तब वो कर देंगे। आपने प्रमोशन का ऑर्डर देखा ना? हाँ मैम प्रमोशन का देखा, ऑर्डर बिल्कुल देखा। पढ़ा कि नहीं? इसमें लिखा है कि नहीं? अब फिलहाल और मैम मैंने अगर पढ़ा आप और मैंने तो अपनी अपडेट कर दी। देखिए, आप उस डिवीजन में बैठे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा, आपकी सर्विस बुक एजी ऑफिस आ रही, तो अगर आप एक बार उसमें देख लेंगे इंक्रीमेंट है कि नहीं, तो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा हमारे लिए भी? यस मैम, मैंने तो अपडेट करा के भेजी है, लेकिन डिवीजन वाले नहीं पढ़ते ये सब चीजें। तो आप देखिए, उनसे करवाइए ना। आपने पढ़ा है, अपना सर्विस बुक है, अपना पे फिक्सेशन है, अपना प्रमोशन है, क्यों? मैं ठीक तो है ना? करवा के भेजा हूँ, मैं तो एडवांस में लिख दूंगा सर। आपका कोई ग्रुप होगा उसमें भी डाल दीजिए आप लोग, ठीक है मैम, है ना? ओके। ये सब कॉजेस ऑफ डिले है, फिर आपको लगता है कि काम जल्दी नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। और कुछ? Yes, Aparna, I think we can end if you feel that we can end now. Thanks a lot for supporting us and wonderfully discussed the various issues. Of course, issues तो रहता ही है, उसको solve करना बहुत important है. And delay को कम करना, it is mutual responsibility, both the employee as well as the employer. So thank you so much for wonderful interaction. And हिंदी में वार्तालाप करने के लिए बहुत ही अच्छा. Yes, thank you. This first time throughout Hindi में हुआ है, and many of them have appreciated also.
Thank you so much. Thank you. Thank you very much, madam. Thanks. Goodbye.